کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پی ڈی پی نے جموں کشمیر کو پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ کا میدان بنانے کے بجائے امن اور دوستی کا پل بنانے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ پی ڈی پی نے جموں کشمیر کے خصوصی آئینی اور قانونی درجے کی بحالی تک جدوجہد جاری رکھنے کے لیے اپنے وعدے کو دہرایا۔ جموں میں پی ڈی پی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی لیڈروں کی میٹنگ کے بعد سابق ایم ایل سی اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر سریندر چودھری نے جموں کشمیر سے دفعہ 370 اور 35 کو ہٹاتے ہوئے یو ٹی بنائے جانے کو پارلیمنٹ پر ایک داغ سے تعبیر کیا۔ انہوں نے ایل جی پر جموں کشمیر میں کورونا پر کنٹرول میں پوری طرح ناکام ہونے کا الزام بھی لگایا ہے۔ نے کہا کہ اس ریاست نے 5 اگست 2019 میں جو بھی فیصلے اس ریاست میں کے لیے کیے، جو قانون پاس کیے، ہم کہتے ہیں وہ سارے واپس لیجئے اور ہمیں ہماری اسٹیٹ ہمیں واپس دیجئے، کیونکہ جموں کشمیر ریاست میں جو پہلے ماحول تھا آج کے ماحول سے بہت اچھا تھا۔ آج آپ دیکھیں، یہ کووڈ-19 کی بات کر لیں، 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی ہے جموں کشمیر کے اندر، باقی اسٹیٹوں میں 20 15 6 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ اتنا نہیں ہے جتنا اگر ریشیو آپ دیکھیں جتنا جموں میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے، ایک کووڈ-19 کے جو پیسے آئے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ لگا کہاں ہے۔ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بہت کافی بدلاؤ آیا ہے۔ سسٹم کو بدلنے کے ساتھ ساتھ قانون بھی بدلنے پڑتے ہیں۔ بی جے پی کے لیڈران کے ہاتھ میں کوئی جادو نہیں کہ راتوں رات 60 سالہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے۔ ان باتوں کا اظہار بی جے پی لیڈر ہنا بھٹ نے نیوز 18 نمائندہ یحییٰ سلطان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں الیکشن ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بدلاؤ کی بات آلریڈی ہے کہ 370 ہٹ گیا، یو ٹی بن گیا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف قانون بدل رہے ہیں، کہیں سسٹم کو بدلنے کے لیے قانون بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہم کر سکتے تھے پچھلے سال سے اب تک، لیکن کووڈ بیچ میں آ گیا، آپ کا بارڈر شانت نہیں ہے، لیکن جس گتی سے، جس سپیڈ سے پورا جموں کشمیر کا پوری گورننس جو ہے ڈیولپمنٹ کی اور ہی صرف فوکس کر کے ہے۔ 32 کروڑ پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام کو سیدھا 82 کروڑ سبسڈی اماؤنٹ اور جموں کشمیر کو ٹارگٹ لیس بنایا گیا ہے۔ بیوروکریسی مجھے لگتا ہے صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے۔ پولیٹیکل نیپوٹزم جو ہمارے 60 سال سے یہاں پہ چل رہا تھا کہ ایک ہی پریوار کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا تھا اور باقی سارے بے روزگار، باقی سارے غریب، اس کو بدلنے کے لیے صحیح طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس کو لانے کے لیے پارٹیاں نئی کچھ بنی تو جب تھوڑے حالات آپ کو ٹھیک لگیں گے، الیکشن بھی ہو جائیں گے، آپ کی سرکار بھی بن جائے گی۔ ٹنگمرگ کے کلبارہ علاقے میں اس وقت 2 ریچھ نمودار ہوئے جب لوگ اپنے باغات میں آبپاشی میں مصروف تھے۔ ریچھ نے 2 افراد پر حملہ کیا، ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ زخمی افراد کی چیخ و پکار سے لوگ جائے واردات پر پہنچے اور انہیں ریچھ کے چنگل سے بچا لیا۔ زخمی افراد کو نازک حالت میں ٹنگمرگ اسپتال پہنچایا گیا، یہاں سے انہیں بعد میں سری نگر منتقل کیا گیا۔ علاقے میں جنگلی جانوروں کے نمودار ہونے سے خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ ایک بالو آ گیا ہے جنگل سے اور اس نے 2 بندوں کو یہاں پر زخمی کر دیا ہے، شدید زخمی کیا ہے، تو اس وقت وہ لوگ ابھی ہاسپٹل میں ہیں اور ہم اس وقت بہت شکر گزار ہیں فرسٹ آف آل میڈیا کا، کیونکہ جو موقع پر یہاں پر آئی اور انہوں نے کنسرن کیا ہے وائلڈ لائف کو۔ ابھی وائلڈ لائف بھی یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں انہوں نے آشواسن دے دیا ہے کہ ہم اس کو ابھی ٹریس کریں گے تو پھر اس کو اپنے تحویل میں لے لیں گے۔ محکمہ باغبانی کی جانب سے کپواڑہ میں کسان پکھواڑے کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ JKVIB کی نائب چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا بھٹ نے اس کا افتتاح کیا۔ محکمہ زراعت کے افسران، زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کے علاوہ کسانوں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نے کہا کہ اس کا مقصد کسانوں کو مختلف اسکیموں سے روشناس کرانا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مختلف محکموں کی جانب سے اسٹال قائم کیے گئے تھے۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی ہندواڑہ BDCs کے چیئرپرسن بھی موجود رہے۔ پردھان منتری جی کی یہ تمنا ہے کہ پورے بھارت میں، پورے جموں کشمیر میں یہ جو اسکیمز ہیں ان کا فائدہ اٹھائے اور وہ اپنا کاروبار شروع کریں، اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کی بھی امپلائمنٹ جنریٹ کریں، تاکہ یہاں کے جو یوتھ ہیں جو بھی کسی میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں
नहीं तो बहुत सारी स्कीम्स में एक टारगेट होता है स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को, जम्मू कश्मीर को टारगेट लिस्ट किया गया है। फार्मर को, हर एक ग्रोवर को उसमें अकोमोडेट करना है। इवन जो हमारा शीप का काम करता है, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का काम, जो हमारा फिशरीज़ का काम, उसको भी केसीसी कार्ड देना है, और ताकि वो दरमियानदारी से बचे और अपना काम आराम से करे और तरक्की करे। लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ये लोगों के फ़ायदे के लिए। और हमने भी अपनी जो यहाँ पर ज़मींदार जो किसान हमारे हैं, जो मुख्तलिफ मुश्किलात से जिनको दरपेश जो मुश्किलात है, उनके बारे में भी हमने उनसे कहा है कि वो उनकी नोट्स में लाया है, तो बाकी उनका भी अजाला हो जाएगा। गांदरबल के बिहामा चौक में डिमोलिशन ड्राइव का मकामी लोगों ने खैर मकदम किया। लंबे अरसे से पांडुच से बिहामा चौक की तोसी का मुतालबा कई वजूहात के चलते इल्तिवा का शिकार था। आज इंतजामिया ने यहां आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को मुनहदम किया। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वहीं गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर ने बहुत जल्द चौक की तोसी का काम मुकम्मल कर लिए जाने की यकीन दहानी कराई है। लाखों लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई ये बोटल नेक्स गांदरबल में बहुत देर बाद सही आज पहली बार इन बोटल नेक्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस बारे में सराहना करते हैं कि एक कदम उठाया गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सरकार इसी तरह काम करेगी और ये सारे बोटल नेक्स को हटाकर लोगों की जो परेशानियों की बाइस बनी हुई है उन का इजाला हो जाए। 5-8 दुकानें जो थी, ये बोटल नेक था हमारे बिहामा चौक में, तो हमने आज उन दुकानों को डिमोलिश किया और यहाँ पे जो है वाइडनिंग का काम जो है अब आसान हो जाएगा। इससे आगे भी जो हमारी बोटल नेक्स इंशाल्लाह हम टाइम बाउंड मैनर में उनको भी क्लियर करके कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारा ये पांडे बिहामा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होकर लोगों को वक़्फ़। टंगमर से 20 किलोमीटर दूर दराज इलाका रंगावाली, केनावाली और गोगलडारा में गरीबों की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले गुजर बकरवाल लोग तामीराती स्कीमों से महरूम रखे गए हैं। कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें स्वच्छ भारत स्कीम के तहत बैतुल खला बनाने के ज़ुमरे में नहीं लाया गया है। यहाँ आज भी आर्जी बैतुल खला बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बैतुल खला तामीर करने के बाद पैसा वागजार नहीं किया गया। रंगवाली, केनावाली और गोगलडारा के लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया और मुतल्लका महकमे से मुदाखलत की अपील की है। लोगों ने बनाया, कुछ लोगों की शिकायत है कि अभी पैसे भी नहीं मिले हमें। मेरे पास 2-3 बंदे ने बोला भी कि बनाया है हमने, फैक्टर किया, मगर VLDO बोला बनाएंगे, पैसा दे देंगे, मगर अभी नहीं आया। जमीन बचाई गवर्नमेंट ने, बोला मकान बनाओ, मगर अभी तक वो पैसा नहीं मिला। बोलते हैं वो प्रधानमंत्री ने वो बंद कर दिया, और ये स्कीम बंद की तो फिर वो मकान क्यों बनाए बेचारों गरीब लोगों का। प्लीज़ ये बात मेरी किसी अफसर तक पहुंचाना बस। जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, एक बेस लाइन सर्वे हुई थी, ठीक, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन सर्वे फॉर SBM। उसमें जितने लोग थे वो 2018 में ही कवर हो गए। हमारे 105 लोग ऐसे हैं मेरे ब्लॉक में जो अभी NLOB में है, मतलब नो लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी। जब हम इनको कवर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो लोग आपको नज़र आ गए हैं, चूँकि पूरा हिली एरिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन 105 में से इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे जो आज तक कवर नहीं हुए हैं। वादी कश्मीर में लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में मसरूफ़ हैं। उधर कस्बतराल में तहसीलदार की कुर्सी कई महीनों से खाली होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों के मुताबिक चंद माह कबल तहसीलदार को ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन अभी नए तहसीलदार की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने हुकाम से इलाके में तहसीलदार को तैनात करने की मांग की है। सर, तहसीलदार यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ इतने सारे त्राल में गांव है और लॉकडाउन में हमें बहुत सारी परेशानी आती है। एक साइन के लिए भी हमें अवंतीपुरा जाना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट से हमें ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पर एक परमानेंट तहसील होना चाहिए। और यहाँ पे अभी पटवारी का भी साइन कराना था, वो भी अवेलेबल नहीं है सर। यहाँ इतने सारे गांव हैं, कम से कम तहसीलदार साहब होने चाहिए। अगर तहसीलदार अवेलेबल नहीं है, कम से कम एडिशनल चार्ज तो फिलहाल किसी को देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है। ऊपर से एक तो पुलिस तंग करती है, बाहर नहीं निकलने देती, दूसरा यहाँ पे आके फिर हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूँ कि एडिशनल चार्ज किसी को फिलहाल दिया जाए। लद्दाख के LG के मुशीर उमंग नुरुल्लाह का करगिल के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने द्रास का दौरा किया और मुश्को वादी और मुतयान में अवामी वफूद से मुलाकात की। करगिल में उमंग नुरुल्लाह ने ज़िला अफसरान के साथ मुलाकात की और LHDC के चेयरमैन फ़ेरोज़ अहमद ख़ान और DC करगिल के अलावा दीगर ज़िला अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया।
करगिल में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुख्तलिफ मकामात से करगिल आने वाले अफराद में ट्रैफिक पुलिस लद्दाख की जानिब से मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। खुद SP पुलिस ट्रैफिक लद्दाख मोहम्मद रफ़ी गिरी ने DTI करगिल इंस्पेक्टर निसार अली के साथ मिलकर मास्क तकसीम किए। इस मौके पर SP ट्रैफिक ने दावा किया कि करगिल में 90% लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी गिरी ने इस मौके पर मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस मौके पर 400 मास्क तकसीम किए गए। हमने सुबह से हम आज लोग चेकिंग कर रहे हैं ट्रैफिक वायलेशंस वगैरह। तो आज ही हमने यहाँ पे देखा कि तकरीबन 90% करगिल में जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हमने देखे बीच बीच में विदाउट मास्क। तो इसमें हमने समझा कि क्यों ना हमने ये इस पे प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना इस पे कोई अवेयरनेस हम करें। तो सुबह से आज हम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि आपने देखा पेंडेमिक जो कोविड-19 है, इसमें आपको पता है कि अब लगातार इसमें रिलैक्सेशन पब्लिक को दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग हैं वो विदाउट मास्क जो हैं वो मार्केट में आए, पब्लिक प्लेसेस पे घूमें। तो हमने ये आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया कि लोगों को, एक तो लगातार हम गाड़ियां रोक के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि भाई अगर आप पब्लिक में आते हो तो मास्क लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से भी हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो मास्क है वो आप मेहरबानी करके लगाएं, विदाउट मास्क जो है पब्लिक प्लेसेस पे ना आए। करगिल के तमाम सरपंच और पंच कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत और लद्दाख यूटी इंतजामिया की सख्त तनकीद करते हुए खुले अल्फाज में कहा कि करगिल को एक साजिश के तहत नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने साबिक गवर्नर SP मलिक के उस वादे को याद दिलाया जब पूरा करगिल एकमुश्त होकर यूटी के खिलाफ हुआ था और साबिक गवर्नर ने वादा किया था कि करगिल और लेह दोनों में गवर्नर 6 महीनों तक रहेंगे, डायरेक्टर्स दोनों अजला में बराबर रहेंगे, नौकरी और ज़मीन की हिफाजत की जाएगी, लेह और करगिल को एक नज़र से देखा जाएगा, लेकिन हालात इसके बरक्स चल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सहित वजारत मोहम्मद अली चंदन ने करेडा के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के साथ जायजा मीटिंग की। करेडा लद्दाख में माइक्रो और सोलर सिस्टम से बिजली फराहम कराता है। उन्होंने वाघा मुल्वक शर्गिले सब डिवीज़न के दारकेट के लिए 4 नए प्रोजेक्ट की तजवीज़ पेश की, जिससे 5 मेगावाट बिजली फराहम होगी। साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।